अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। आज थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है स्टैटिस्टिक्स पे। तो बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। मशीन लर्निंग में काफ़ी इसका इस्तेमाल होता है। तो इसकी 2 दिन के लिए ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो डॉक्टर ताहिर, डॉक्टर मुजीब, डॉक्टर फिरदौस, ये सब इसके ऑर्गेनाइज़र्स हैं। तो थोड़ा सा टाइम मिला तो हम इसको कवर कर रहे होंगे। मैं इसकी हाइलाइट्स आपके सामने पेश कर रहा हूँगा। तो थोड़ी देर तक चलेंगे अभी। ज़रा मैं अभी आया हूँ ऑफिस में, सेटल डाउन हो जाऊँ और फिर हम कॉन्फ्रेंस के लिए जाएंगे। तो अभी हम चलते हैं। पहले एक शॉर्ट सा राउंड लगा कर आते और देखते हैं रिसेप्शन कैसी है, स्टूडेंट कैसे काम कर रहे हैं। तो टाइम बता दूं, टाइम यहाँ पर हो गया 9 o'clock। जो ओपनिंग सेरेमनी है वो 9:30 पे है। तो अभी हम चलते हैं, रिसेप्शन देख कर आते। आम तौर पे जो भी कॉन्फ्रेंस होती है वो SMME सेमिनार हॉल में होती है, क्योंकि SNS के पास तो कोई सेमिनार हॉल नहीं है। ये सामने लग रहा है पार्टिसिपेंट्स हैं। रिसेप्शन तो यहाँ होनी चाहिए थी, यहाँ नहीं है। ये सामने रिसेप्शन है। सबने यही सोचा कि तो बहुत ही खूबसूरत सुबह है आज की। ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये भी SMME है, लेकिन हम इसे कहते हैं कि ये SNS का विंग है। ये पूरी एक बिल्डिंग है जो कि SMME की है, लेकिन अभी तक ये हमारे पास है, SNS के पास है बेसिकली। इसको SMME तो हम नहीं कहेंगे, SNS ही कह दें इसको। SNS न्यू बिल्डिंग कहते हैं। तो ये सामने हॉल है। आम तौर पे ये हॉल आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस में, मुख्तलिफ़ जो सेरेमनीज़ होती हैं वो यहीं पर होती हैं SNS की। It is truly an honor to be here amongst some of the brightest minds in the field of statistics and data analytics. This conference brings together researchers, professionals, and students from across the globe, united by our shared passion for pushing the boundaries of knowledge and innovation. As we gather here today, let us reflect on the transformative power of statistics and analytics, from enabling data-driven decisions in business to tackling global challenges in healthcare, climate change, and technology. Our field continues to shape the future. This year's conference highlights our collective responsibility to address emerging challenges through research, collaboration, and innovation. Over the next 2 days, we'll explore new trends, groundbreaking ideas, and practical solutions that will pave the way for a smarter and more data-informed world. To continue, we'd love to acknowledge the dedication of those who have worked tirelessly to make this event a success. At this point, it is our pleasure to invite one of the main organizers of this conference, Dr. Tahir Mahmood, to share a few words with us, please. Good morning, esteemed guests, distinguished participants and speakers. It's a great honor for me to welcome you all for the third International Conference on Statistics and Data Analytics, hosted by School of Natural Sciences, NUST, Islamabad. This conference brings together the vibrant audience of scholars and professionals, around 150 participants, which includes the registered participants, oral speakers, poster presenters, and invitees. These participants are joining us from different countries, including UK, Italy, China, Malaysia, and from the distinguished universities across the Pakistan. I am delighted to acknowledge the university representatives, which includes the Qaid-e-Azam University, Islamic University, Allama Iqbal Open University, RIFA International, Rawalpindi Women University, ComSets,
Air University, Wah University, Peshawar University, Abdul Wali Khan University, Mardan, Sawat University, Sargodha, uh, Punjab University, Karachi, and IBM Karachi. Such a diverse gathering of minds is a true testament to the global interdisciplinary nature of statistics and the data analytics. I would like to extend my deepest appreciation and thanks to our chief guest, Dr. Naeem Muzaffar Saab, and the keynote speakers who bring invaluable expertise from around the world to our organizing committee for their tireless dedication in making the event a reality. Over the course of conference, I encourage you to engage fully with the sessions, networking with the peers, exchanging ideas with the researchers. Together, let us explore the innovative approaches and strengthening the role of statistics and data analytics in shaping the better future. Once again, I would like to welcome you to NUST, and I wish you all the productive and encouraging experiences. Thank you very much. Thank you, sir, for your inspiring words and your pivotal role in organizing this event. Now, it is our great honor to invite our esteemed chief guest, Dr. Naeem Muzaffar, Chief Statistician at the Pakistan Bureau of Statistics, PBS, to address this gathering, please. Dear Dr. Tahir, Faculty of Department of Statistics, esteemed professors of NUST and the academic institutions, universities from Pakistan and abroad, dear students and scholars, Assalamu alaikum and a very good morning. Please let me know if there is any foreigner in this room who cannot understand Urdu, because my preferred mode of communication is Urdu, not English. Dr. Sir, so we can communicate. तो गालिब का मिसरा है, ज़ुबान गैर से क्या शर आरज़ू करते, अपनी ज़बान में गुफ्तगू करना। मैं खास तौर पे स्टूडेंट से मुखातिब हूँ, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, सब ने ये सुना है डेटा ऑयल। 5 महीने पहले स्टेट बैंक ने एक बिग डेटा कॉन्फ्रेंस का इनकार किया और वहाँ एक स्कॉलर ने बड़ा डेयरिंगली, दबंग तरीके से कहा कि ये बहुत ही फजूल फ्रेज है और अगर किसी ने इसको अरेज कह दिया है, अकल की बात कह दिया तो बहुत बड़ा अहमक। हम सब चौंके कि बिग डेटा कॉन्फ्रेंस, स्टेट बैंक उसको लीड कर रहा है, सारे सूबाई वफाकी इदारे जो बड़े बड़े डेटा प्रोड्यूसर्स हैं, रिसर्चर्स, वो उसमें बैठे हुए हैं और एक खातून की अजीब बात कर गई। लेकिन उसने जब वजाहत की तो फिर हमें समझ में आ गया कि बिल्कुल ठीक कहा था उसने। तो ऑयल की नेचर पे गौर करें। जब हम ऑयल के बारे में सोचते हैं तो 2 इस्तेमाल इसके हमारे जहन में फौरन आते हैं। एक ट्रांसपोर्टेशन, हम सब अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। एक पकाना, खाने पकाने के लिए एडिबल ऑयल है। जरा सोचें, आप गाड़ी से शुरू करें। गाड़ी में तेल जाता है 4000 से लेके 10,000 किलोमीटर तक, जैसा ऑयल होगा उस तरह चलता है और उसके बाद उसकी ल्यूब्रिकेशन खत्म हो जाती है। फिर उसको हम निकाल लेते हैं गाड़ी से, और जब निकाल लेते हैं तो किसी तसले तगारी में वो रखा होता है और हम क्या सोच रहे होते हैं कि इसका क्या करें। कोई भट्टे वाला ले जाता है,
कोई स्टील बनाने वाले फाउंड्री वाले ले जाते हैं, वो रबड़ ऑयल को मिला के मेल्टिंग करते हैं और उससे काला धुआं निकलता है। ये तो कहीं से भी खुशगवार अमल नहीं है। खाने के तेल के बारे में सोचें, थोड़ा डले तो सेहत मजा, ज्यादा डले तो मसाइल, बीमारियां, और खवातीन ज्यादा है कुकिंग में, थोड़े से जेंडर रोल्स भी चेंज होना शुरू हो गए वैसे। फ्राइंग करते हैं हम, डीप फ्राइंग, उसके बाद तेल बच जाता है, कितनी दफा हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत ज्यादा दफा नहीं कर सकते। जब किसी ढाबे पे खाने के लिए जाते हैं तो दिल में क्या चीज आ रही होती है कि पता नहीं इसने 7 दफा इस तेल में से फ्राइड चीजें निकाली हैं, 8 दफा, तो ये पता नहीं कैसा ऑयल होगा। KFC वगैरह पे जाते हैं तो थोड़ा इत्मीनान होता है कि ठीक है यहूदियों की है, लेकिन तेल इन्होंने बार बार नहीं इस्तेमाल किया होगा। तो डेटा ऑयल कैसे हो सकता है? तो तशबीह गलत है। इससे जो कॉनोटेशंस आ रही हैं वो तो ठीक नहीं है ना। डेटा का प्रोसेस क्या है? डेटा हमारे पास मुख्तलिफ शक्लों में आता है, नंबर्स में, टेक्स्ट में और इनके कॉम्बिनेशन में। वो इंफॉर्मेशन बनता है कि हम बनाते हैं, फिर वो हमारे फैसलों में, हमारी चॉइसेस में इस्तेमाल होता है। चॉइसेस इंफरादी भी हो सकती हैं, माशरती भी हो सकती हैं, कारोबारी भी हो सकती हैं, हुकूमती भी हो सकती हैं, और उसके कुछ नताइज होते हैं। वो नतीजा हमारी मालूमात, हमारी नॉलेज में इजाफा करता है। वो अच्छा नतीजा होता है तो हम कहते हैं कि ये प्रोसेस अच्छा था, ये वाला डेटा, इस वाली इंफॉर्मेशन, इस वाली फैसले ने हमें ज्यादा फायदा दिया है, लिहाजा इसको ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, और इसी को हम विजडम कहते हैं। इसके बरक्स, अगर इस पूरे प्रोसेस के नताइज अच्छे नहीं निकलते तो हम ये नहीं कहते कि ये बहुत ही खराब था। हमारा पहला रिस्पॉन्स, रेशनल रिस्पॉन्स, ये होता है कि कहाँ गलती हुई है, उसको देखते हैं, और अगर हम देख लेते हैं कि गलती नहीं हुई तो फिर हम ये कंक्लूड करने की तरफ जाते हैं कि ये चीज ठीक नहीं थी, हमें अपने रवैये को देखना चाहिए। ये 360 डिग्री का साइकिल पूरा होता है। डेटा ऑयल नहीं हो सकता, डेटा कुछ भी हो सकता है, ऑयल नहीं हो सकता। ऑयल के साथ मनफी चीजें वाबस्ता है, और इस साइकिल का भी मैंने आपके सामने बयान रखा, उसमें मनफी चीज नहीं, वो मस्बत चीज है। अब इस प्रोसेस की तरफ आए, एनालिटिक्स की तरफ। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी देर के लिए सोचें कि एनालिसिस और एनालिटिक्स में फर्क क्या है। थोड़ी देर के लिए सोचें, और फिर आपको जो मैं अगले 4-5 मिनट गुफ्तगू करूंगा, और मैं इस अंडरस्टैंडिंग को, इस इंस्पिरेशन को जो मुझे अल्लाह ताला ने जो समझ दी है प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के दौरान, वो मैं आपसे भी शेयर करूं, और आपको भी अगर वो समझ अच्छी लगे तो अपनी रिसर्च में, अपनी तदरीस में, अपने पॉलिसी के कामों में उस एंगल को लेके आए, अपनी टीचिंग एडमिनिस्ट्रेशन में, एजुकेशन मैनेजमेंट में उसको लेके आए। देखिए, एनालिसिस है पोस्टमार्टम। आपने कुछ रिसर्च की, कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उसका नतीजा निकल गया, या कोई वाकया हुआ अच्छा या बुरा, उससे रिलेटेड आपने इंफॉर्मेशन जमा की, कोई मॉडल लगाया, जिस भी डिसिप्लिन से आप हैं वो आपका पर्सपेक्टिव फॉर्म करता है, उस डिसिप्लिन की आपने थ्योरीज लगाई, समझने की कोशिश की, मुहर्रिकात, प्रोसेस, नताइज, और आपने कुछ कंक्लूड कर लिया। ये सब पोस्टमार्टम है,
ये सब फॉरेंसिक है। एक चीज हो गई और आप एक तरह से कबर कुशाई करके देख रहे हैं कि भाई किसने मारा, क्यों मरा, वगैरह वगैरह वगैरह। एनालिटिक्स क्या है? एनालिटिक्स पोस्टमार्टम नहीं है, उसका ताल्लुक फ्यूचर से है, पर्सपेक्टिव से है। बुनियादी फर्क एनालिसिस का और एनालिटिक्स का यही है कि आप सिर्फ माजी में हैं या आप माजी में इस हद तक हैं कि आपसे सीखना चाह रहे हैं कि क्या गलत हुआ, क्या अच्छा हुआ, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव माजी नहीं, आपका ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव का ताल्लुक माजी से नहीं होता, उसका ताल्लुक कल से होता है, नियर फ्यूचर से होता है। ये फर्क है एनालिसिस और एनालिटिक्स का। अच्छा, अब थोड़ा सा पॉलिसी रिसर्च की तरफ आ जाएं। उस पर मैं कम्युनिकेशन पे बात करूंगा और उसके बाद मैं अपनी बात कंक्लूड करूंगा। अब कम्युनिकेशन के बारे में सोचें आप। सबसे फजूल तरीन तरीका कम्युनिकेशन का क्या हो सकता है? सेक्टर्स हो, इस तरह के छोटे छोटे नंबर्स हों, ऊपर साल 2000 से लेके 2025 तक के कॉलम्स हों, और कोई कहे कि यार इसको समझ के दिखाओ, तो मैं कहूं तुम्हारा दिमाग सही है? इतनी सारी इंफॉर्मेशन मैं तो पढ़ नहीं सक रहा हूं, तुम मुझे कह रहे हो मैं समझ लूं और फिर कोई तकरीर करूं कि क्या फजूल बात कर रहे हो? सबसे फजूल तरीका कॉम्प्रिहेंशन का क्या हो सकता है? पढ़ना, वेरी फ्रेंकली। अच्छा, उससे कम बेहुदा तरीका क्या हो सकता है? या लेट्स चेंज दी वर्ड्स, उससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? सुनना। पढ़ने में आपके बहुत सारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं। आप पढ़ते हैं, आप डिसाइफर करते हैं, आप समझते हैं, फिर आप कंपैरिजन करते हैं, फिर आप किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। ज्यादा है, कम है, बढ़ गया, कम हो गया, बराबर है, अच्छा है, बुरा है, जो भी आपका पर्सपेक्टिव। सुनना उससे बेहतर प्रोसेस है क्योंकि उसमें कॉग्निशन के स्टेप्स कम है, आपको जल्दी से बात समझ में आ जाती है। देखना उससे भी अच्छा है। रीडिंग, लिसनिंग, सीइंग, वॉचिंग, सबसे बेहतरीन इन तीनों में देखना है। हम बहुत आसान गुफ्तगू कर रहे हैं, गुफ्तगू नहीं कर रहे भी तो मैं बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आसान है और आपको समझ में आ रही होंगी। देखना उससे भी अच्छा है। और फिर इनके कॉम्बिनेशन कर दें, सुनना और देखना और अच्छा है, सुनना और देखना, और ये अमल डायनामिक हो, ये और अच्छा है। इसको हम आसान अंग्रेजी में एनिमेशन कह देते हैं। अब आप सोचें कि एनालिटिक्स में अगर मैं डॉक्टर ताहिर साहब माजरत के साथ, अगर मेरे पास ये लिबर्टी होती कि मैं इस कॉन्फ्रेंस का नाम तजवीज करता, तो मैं इसका नाम रखता डेटा साइंस नहीं, डेटा आर्ट्स रखता। और अब यहां से शुरू करते कि ये वाला मैंने डेटा कलेक्ट किया, ये एफबीआर का डेटा है, ये नादरा के डेटा से कुछ मेरे पास आया, ये पीबीएस के डेटा से मेरे पास आया कुछ, ये लैंड रिकॉर्ड का डेटा है, ये क्रॉप रिपोर्टिंग का डेटा है, ये गैलप का डेटा है, ये इप्सॉस का डेटा है। और जरा मैं ये सारे डेटा एक दूसरे पर लगा के तो देखूं, इनका कोई जीआईएस मैप बनाऊं। क्या मुझे अपने सोशल प्रॉब्लम्स के लिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के लिए, जेंडर प्रॉब्लम्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स के लिए कोई सॉल्यूशन बनता हुआ नजर आता है? अगर आता है तो फिर मैं उसकी कोई विजुअलाइजेशन बनाने की कोशिश करूं। ये बहुत अच्छी फॉर्म होगी इस पूरे प्रोसेस की कि आप इस नतीजे को, इस एनालिसिस को किसी एनिमेशन में, किसी तस्वीर में, किसी ऐसी चीज में डालने की कोशिश करें जो सबसे आसान हो, जो दिलचस्प हो और जो
आपके सुनने वाले, आपके देखने वाले अपनी जिंदगी से रिलेट कर सकें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. दो जुमले आपके सामने रखूंगा, कोई न्यूज आइटम हादसे के। एक हादसा न्यूज आइटम ये होगा, खुदा ना खास्ता, कि शुमाली इलाकों से पिंडी की तरफ आते हुए एक जीप खाई में गिर गई, माँ बच्चा या नौब्याता जोड़ा, ड्राइवर खाई में हलाक। ये एक खबर है, तकलीफ होती है सुन के। एक खबर है ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद मर गए। क्या फर्क है? यस, एक में हमने अफराद को नंबर में कन्वर्ट कर दिया और एक में हमने अफराद को नंबर में कन्वर्ट नहीं किया। है वही नरेशन, चीज एक ही है। एक में हम डिह्यूमनाइज हो गए, वी प्लेस नंबर्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। 3 लोग मर गए और 3 लोग तफरी करने गए थे बेचारे, और तफरी की बजाय कुछ और हो गया उनके साथ। ये आपने इसमें ह्यूमन एलिमेंट डाल दिया। ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हो जाती हैं। स्टैटिस्टिक्स और डेटा साइंस में भी आपको ह्यूमन एलिमेंट एम्बेड करना चाहिए, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन करनी चाहिए। लोग अक्सर कहते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी डेटा एनालिटिक्स सिर्फ स्टैटिस्टिक्स से बोरो नहीं करेगा, इसको इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए अगर इसको इफेक्टिव होना है। थोड़ी सी मैं बात कर लूं डेटा फेस्ट की। मुझे नहीं पता कि आप में से इतने लोग इसमें शामिल थे। डॉक्टर साहब उसमें तशरीफ लाए थे, नस्ट के हमारे फैकल्टी के स्टूडेंट्स के भी लोग थे। उसमें हमारी कोशिश यही थी कि हम ये बताने की कोशिश करें कि नंबरों को अगर इंसानी मसाइल, इंसानी जिंदगी, इंसानी ख्वाहिशात, इंसानी एम्बिशंस, माशरती एम्बिशंस, इस कॉन्टेक्स्ट में रख के पेश करोगे और नंबर, स्प्रेडशीट, इंफोग्राफिक, टेबल्स, यहां से एनिमेशन, यहां से आगे आओगे और उन नंबरों को कोई ऐसी फॉर्म देने की कोशिश करोगे माशरती, माशी, इंफरादी पहलुओं पर कि लोग अपने आप से रिलेट कर सकें, तो स्टैटिस्टिक्स दिलचस्प है। और 3 अफराद मर गए, स्टैटिस्टिक्स बहुत बोरिंग है। तो ये कि आप इस पूरे मजमून को, इस पूरे एंडेवर को दिलचस्प बनाना चाहते हैं या बोरिंग, बेजार करने वाला कोई काम बनाना चाहते हैं, ये असल में आप पर ही डिपेंड करता है। अगर आपके अंदर पैशन है कि इस इल्म या उलूम को मिला के आप ऐसी इंसाइट्स, ऐसी इंट्यूशन, ऐसी मोटिवेशन दे सकें जिससे अफराद और माशरा अपने आप को रिलेट कर सके, तो अफराद और माशरा आपके काम को सराहेगा, आपको कहेगा और अच्छा काम करें, हमें अच्छा लग रहा है, मुफीद है। लेकिन जब आप 3 अफराद मर गए, लिटरेसी इतने % चली गई, लोग उसको पसंद नहीं करेंगे, इसलिए कि लोग उससे रिलेट नहीं कर सकते। बिल्कुल उस तरह जिस तरह पीडीएफ का एक बहुत ही गुंजलक सफा नंबर से भरा हुआ, उसको कोई भी पसंद करेगा। लेकिन सुनने के अमल को, देखने के अमल को, एनिमेशन को, इसलिए कि उसमें वो रिलेट करना शुरू कर देते हैं, उनके लिए आसान हो जाता है। तो ये कहना कि ये मजमून दिलचस्प है या ये मजमून बेकार है, ये बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट है। ये असल में हम ही हैं जो इस मजमून को दिलचस्प बनाते हैं या बना सकते हैं, और हम ही हैं जो इसको नहायत बेजारकुन, नहायत बोरिंग बना सकते हैं। कोशिश करें कि सीखें इसके इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को, खास तौर पे असातिज़ा, यूनिवर्सिटीज प्लेसेस हैं। 2 चीजें होती हैं यूनिवर्सिटी, यकीन करें, मैं खुद भी तदरीस से वाबस्ता रहा हूँ
15-16 साल पढ़ा है मैंने, इकोनॉमिक्स पढ़ाई। एक आइडियाज, एक आइडियल्स, बाकी सब तफसील है। सिर्फ दो जगह आइडियाज, आइडियल्स, बाकी सब तफसील है। आप यकीन करें, रेस्ट इज लेबर। आपका बहुत शुक्रिया सुनने का। Thank you so much, everyone. तो ये अभी ओपनिंग सेरेमनी थी, अभी रिफ़्रेशमेंट का टाइम हो गया है। मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ लेक्चर वगैरह देखते हैं। आज लेक्चर है, रिसर्च करते हैं। तो अभी जो है क्या हो रहा है सर, इलेक्शन हो रहा है, फुटबॉल को वोट देना है, ठीक है। अच्छा, फुटबॉल इंशाल्लाह जीतेगा, ठीक है। नहीं सर, नहीं बैट बल्ले को सर, ये पीटीआई कार्ड यूज कर रहे हैं, पीटीआई कार्ड यूज कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। बल्ले ज्यादा मैं बेंजीन सर, बेंजीन वोट फॉर बेंजीन। बेंजीन हिट हो गई आज। बेस्ट चॉइस देखी जाती है, बरादरी सिस्टम नहीं देखा जाता वोट के लिए। 360 गैप है, हमजा सदीन कॉन्डर 360 स्टूडेंट है, आप उनको जाके वोट करें सर। सिर्फ टोपियां बाकी सबको करवानी है, टोपी पे ठप्पा लगानी है। थैंक यू सर।